चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जीएचएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गच्चीबौली में कोविड-19 वैक्सीन की टीके अंदाजी के एक बड़े मरकज का इफ्तिताह किया। उन्हें बताया कि इस तरह के बड़े मजीद 6 कैंप शहर में कायम किए जाएंगे। केयर इंडिया तंजीम के ताउन से कायम करदा इस कैंप के औकात सुबह 7 बजे तक 11 बजे रात रखे गए थे। खवातीन और ममर अफराद के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए थे। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि रियासत में अब तक 2 करोड़ 80 लाख अफराद कोविड-19 वैक्सीन के टीके ले चुके हैं। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में 4 नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने का मंसूबा बनाया है। इस मौके पर हेल्थ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तजा रजी, जिला कलेक्टर रंगारेड्डी, अन्वय कुमार, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी और जोनल कमिश्नर రవికిరణ్ भी मौजूद थे। వేరే ఎక్కడ ఉంది తర్వాత ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఒక ఫెస్టివల్ సీజన్స్ ఉంది, బతుకమ్మ ఉంది, అదేవిధంగా దుర్గా పూజ ఉంది, రకరకాల ఫెస్టివల్స్ ఈ పీరియడ్లో ఉంది. అందరూ వేరే చోట వెళ్ళారు. ఇట్లాంటి రకరకాల సమస్య వలన కొంతమంది రాలేకపోయారు. బట్ ఒక హెజిటెన్సీ లాగా ఎక్కడా కనపడం లేదు. రోజు మనం 2.5, 3, 4 lakhs కూడా చేస్తే ఉన్నాను. సో మంచిగా జరుగుతుంది, ఏ రకాల ఇబ్బంది లేదు. ఇది కూడా త్వరలో పూర్తి అవుతుంది. మన దగ్గర వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్స్ ఉన్నాయి, మనకి తెలుసు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు. మనం తప్పకుండా వాళ్ళకి కవర్ చేస్తాం అండ్ విల్ మేక్ ఇట్ ఎ బిగ్ సక్సెస్. ఒక ఓల్డ్ సిటీ ఏరియాలో ఒక స్పెషల్ లేడీస్ అంటే అక్కడ మన యునానీ దవాఖానా ఉంది, తిబి, అక్కడ ఒక సెంటర్, అదేవిధంగా కోంపల్లి ఏరియాలో ఒక సెంటర్, ఎల్బీ నగర్ ఏరియాలో ఒక సెంటర్, ఇట్లా ఒక 5-6 సెంటర్స్ త్వరలో ఒక నెక్స్ట్ 2-3 డేస్లో మొదలు పెడతాం. 2.8 crore ఈజ్ ఎ బిగ్ మైల్ స్టోన్ అండ్ త్వరలో విల్ క్రాస్ 3 crores. మళ్ళీ దానికి సెలబ్రేషన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత 4 and 5 కూడా క్రాస్ అవుతాం, నాకు నమ్మకం. बदकम्मा फेस्टिवल के सिलसिले में 13 अक्टूबर को नेकलेस रोड और करबला मैदान पर बदकम्मा संबूरा के सिलसिले में वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आला अहदेदारों के हमरा इन दोनों मकामात का दौरा किया और इन प्रोग्रामों के कामयाब इनेकाद के लिए किए जाने वाले इंतजाम का मुआयना किया। उन्होंने नेकलेस रोड और करबला मैदान के पास ट्रैफिक तहदीदात आयद करने, लाइटिंग के माकूल इंतजाम और पीने के पानी की सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया। ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత బతుకమ్మ పండుగ మరి గొప్పగా జరగాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ప్రభుత్వమే అఫీషియల్గా బతుకమ్మ పండుగ చేయడం, ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు కానీ దాంతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణ ప్రాంతం హైదరాబాద్, ఒకప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు అప్పర్ ట్యాంక్ రోడ్డు మీద బతుకమ్మ బ్యాన్ చేసింది. అంటే అప్పర్ ట్యాంక్ రోడ్డు మీద అలో చేయకపోతుండే. బట్ ఈరోజు బతుకమ్మ పండుగ తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాట్లు చేయడం, అంటే బతుకమ్మ పండుగ అనేది గ్రామీణ ప్రాంతంలో తెలంగాణ పల్లెల్లో పుట్టినటువంటి పండుగ. దానికి కారణం కూడా ఆ రోజుల్లో నీళ్లు లేక, కరెంటు లేక, పండించినటువంటి పంటకు గిట్టుబాటు లేక, మరి ఎండిపోయిన పంటలు అవన్నీ ముందు పెట్టుకొని ఏడ్చుకుంటూ పాడే పాటలు. మరి ఈరోజు బతుకమ్మ పండుగ 24 గంటల కరెంటుతో పాటు బ్రహ్మాండంగా సాగునీరు, తాగునీరు, ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతమంతా కూడా కలకలలాడుతున్నటువంటి శుభతరుణంలో ఈ పండుగను కూడా ప్రభుత్వం నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఈరోజు మన తెలంగాణ పల్లెల్లో పుట్టినటువంటి బతుకమ్మ ఈ దేశమే కాదు యావత్ ప్రపంచం ఆడేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అయితే కర్బలమైన ప్రాంతంలో మరి సికింద్రాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల నుంచి అక్క చెల్లెళ్ళు, తల్లులు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ వచ్చి బతుకమ్మలు ఆడతారు. మరి వారి కోసం ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రేపు మరి సాయంత్రం జరిగేటువంటి బతుకమ్మ పండుగ గొప్పగా జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి అందరూ అధికారుల సహకారంతో రేపు బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేస్తారు. कागतपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने बल्दी डिवीजन, कुरमागोड़ा, रैन बाजार और दबीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मोरी और नालियों की सूरत हाल का जायजा लिया, जहां हालिया बारिश के दौरान पानी के ओवरफ्लो हो जाने की शिकायत मिली थी। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटरों मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद वासे और अलमदर वाला जाही के अलावा जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के अहदेदार भी उनके हमरा थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन, कुरमागोड़ा, रैन बाजार, दबीपुरा इन इलाकों में कुछ शिकायतें थी
नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर डेनिश के बल्दिया के ऑफिसरों के साथ एरिया कारपोरेटर, नुमाइंदा कारपोरेटर शफाज साहब, मुजफ्फर हुसैन साहब कारपोरेटर और हमारे वासिर साहब कारपोरेटर, अलमदार बालाजी साहब, इन तमाम के साथ दौरा किया गया। और सबसे पहले दारबजंग कॉलोनी में एक ड्रेनेज का मसला था जो हमेशा ओवरफ्लो होता वहाँ पे, वो पानी बहते हुए मिलाद रोड तक आता, सालार मुल्क मस्जिद के पास से होते। मेरा नकीब मिल्लत असदुद्दीन साहब को कोई इत्तला करे, और उसके बाद इससे पहले भी जाके मैंने देखा था, लेकिन उसका मुस्तकिल हल अब निकला। वहाँ एक पतली गली है, उसमें से एक सीवर लाइन डालना है, वो डाल देने के बाद और 2-4 मेनहोल बनाने के हैं, उसके बाद ये शिकायत खत्म हो जाएगी। फिर वहाँ से रैन बाजार बल्दी डिवीजन के इलाके SRT कॉलोनी में आए। वहाँ पर रैन बाजार सुपर बाजार के पीछे के हिस्से में वहाँ पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम था। उसको GM साहब बताए कि एक नई लाइन डाल के नाले में उसका कनेक्शन दे देंगे, तो वहाँ थोड़े दिन को जो ओवरफ्लो हो रहा है उसका मसला खत्म हो जाएगा। वहाँ से गुंडाला बोली मैं यहाँ पे तकरीबन 1 महीने से पानी की तकलीफ है लोगों को। साउथ जोन में रमजान, बकरीद, बोहनाल और गणेश त्योहार के पुरअमन इनेकाद के इंतजाम पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन गुजरात भोपाल को सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी की तरफ से तहनीत पेश की गई। इस सिलसिले में संजरी कन्वेंशन हॉल एतबार चौक में एक तकरीब मुनक़िद हुई। एडिशनल कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सैयद रफीक, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार भिक्षम रेड्डी, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मीर चौक बी आनंद, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस संतोष नगर शिवराम शर्मा और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा मोहम्मद मजीद मेहमानान एजाजी थे। तकरीब के कन्वीनर और पीस कमेटी के नायब सदर टीपू सोनी ने खैर मकदम किया। सदर पीस कमेटी साउथ जोन श्री किशन शर्मा ने सदारत की। कारगुजार सदर संपत तोष्णवाल, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा गाजिउद्दीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी ख्वाजा अब्दुल मोइज और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। दशहरा दोनों के बाद, दीपावली के बाद सीजन को कंप्लीट हो जाएगी। और जिस तरह से लास्ट 1 ईयर से हम देखते हैं कि कोविड एक ऐसी डिस्टर्बेंस लाई हमारी सभी लाइफ में, उससे आगे निकल गए हम। और फिर इस साल मई जून में फिर से एक बार कोविड का सेकेंड वेव आया, और उस टाइम पे भी हम उससे भी गुजर के आगे निकले, और अभी नॉर्मल सी में पूरे आ रहे हैं। जो सभी फेस्टिवल्स इस साल का जो चले, इसमें जो कम्युनिटी का सपोर्ट है, जो आवाम का जो सपोर्ट पुलिस को दिया है, उसी के वजह से इतनी पीसफुली एक पूरे प्रोग्राम से भी निकले। और पीस कमेटी का सक्सेस ये है कि कोई इंसिडेंट ना हो। अगर वो बैकग्राउंड में वर्क करते रहते ऐसे ही अभी आने वाले 2-3 इवेंट्स भी ऐसे ही पीसफुली गुजर जाएंगे। और आई विश ऑल द न्यू मेंबर्स वेरी गुड लक एंड रिक्वेस्ट देम टू एनकरेज यंगस्टर्स। जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको I want to see more of the new faces. ఈ రకమైన సహకారమే మనకి। सिटी कांग्रेस कमेटी के नायब सदर टी श्याम ने बताया कि गोशा महल डिवीजन में गुज़िश्ता 4 महीने के दौरान उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के कैंप लगाते हुए 3,500 अफराद को टीके दिलवाए। उन्होंने बताया कि बाज़ गोशों की जानिब से उनकी कोशिशों की मुखालिफत की जा रही है, इसके बावजूद वो अपनी खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए। आज मीडिया को बुलाने का मकसद मेरा ये है, आज भारत में कोरोना महामारी के बहुत लोग मर गए सोए। इसके बाद 1.5 साल से चल रहा है, 1-2 साल से चल रहा है। उसके बाद ये कोरोना कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन दोनों निकले। उसके बाद 4-5 महीने से हम लोग ये कैंप लगा रहे ऑफिस के पास लगाने के बाद यहाँ पर लोकल लीडर्स
हमारे को ऑब्जेक्शन हमारे को नहीं करे, डॉक्टरों को फ़ोन करके बोल रहे कि आने लगाना ऑफिस के पास, वो ये बोल के मुद्दा उठाने के बाद हमने डॉक्टर को बोला, हम कौन बोला वो तो उन्होंने नंबर भेजा है मेरे को, ये नंबर है। अब वो नाम नहीं बोलना चाहता मैं, वहाँ से हट के फिर भी मैं पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ बाजू डाल के कैंप लगा रहा हूँ मैं। अभी तक 3-3,500 तक हम लोग पब्लिक को वैक्सीन दिए सो है, और भी देंगे। क्या है, कोई भी रोकने दो, हम हमारा काम करेंगे। हम पब्लिक सेवा कर रहे हैं, किसी से डरने का नहीं है। और डॉक्टर को बोला कोई किसी से डरने का नहीं है, कुछ रहा तो आमने सामने आके बात करो का ना, और लगाएंगे हम अभी भी। अब कंटिन्यू कितने महीने से लगा रहे हैं? ये 5 महीने से लगा रहे हम लोग कंटिन्यू। अब इसके पास वहाँ 3 महीने पहले रोके थे, लोकल लीडर्स वो लोग डर के हट गए थे। कौन सी पार्टी के थे, ऐसा कुछ मालूम है? अब वो पार्टी तो नहीं बोलता नाम मैं, मगर नंबर सब आ गया हमारे पास, उसका फ़ोन नंबर सब आ गया। वो उन्होंने फ़ोन नहीं उठा, 4-5 बार फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। हमको अब किससे इतराज़ नहीं है, हमको कहीं भी उन्होंने बोले तो मतलब नहीं है। हमारे डॉक्टर सहयोग कर रहे हैं, हमारे सहयोग कर रहे हैं, हम बराबर लगाएंगे। कहाँ बोले डॉक्टर वहाँ लगाएंगे, हम ऑफिस के पास बोल के नहीं। पब्लिक सेवा है, हम बराबर करेंगे। पब्लिक सेवा किसी से डरने का नहीं हमारे को, हम बराबर। दूसरी नगर के इलाके में मंगल की सुबह उस वक्त हलचल मच गई जब मलकपेट का रहने वाला इरफान बरखी खंबे पर चढ़ गया। पुलिस ने वहां पहुंचकर उसको नीचे उतरने की तरकीब दी और उसे फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर उसके अरकान खानदान के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि वो गुज़िश्ता 2 साल से दिमागी अमराज में मुब्तला था। वो माजी में सरके की वारदातों में भी मुलविस रहा। पुलिस ने बंदलागुड़ा नागोल के एक फंक्शन हॉल पर धावा किया, जहां कोविड-19 कवायद की धज्जियां उड़ाते हुए शराब, कबाब और शबाब की पार्टी जारी थी। बताया जाता है कि अराजियात के कारोबार करने वाले एक इदारे लैंडमार्क रियल एस्टेट कंपनी की 5वीं सालगिरह के सिलसिले में मौज मस्ती की तकरीब मुनक़िद की गई थी। पुलिस आगे की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। पुलिस से बचने की कोशिश के दौरान आसिफ नगर के इलाके में एक शख्स अपनी इमारत की 5वीं मंजिल से कूद पड़ा, जिसके सबब उसकी बरसर-ए-मौका मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 38 साल कलीमुद्दीन चंद अफराद से दुबई भिजाने का वादा करते हुए रकम ले चुका था और डंडीगढ़ पुलिस में शिकायत के बाद केस रजिस्टर किया गया था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंची थी। पुलिस के आलादार भी मकाम वाक़ा पर पहुंच गए और मजीद तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। आज सुबह में 6 बजे के टाइम पे दुंडीगल पुलिस स्टेशन से 4 पुलिस वाले आए। एक खलीमुद्दीन नाम का आसिफ नगर में रहने वाला वेंकटमगन तोटा में केबीएन रेजिडेंसी में 5th फ्लोर में रहते, इसको पकड़ने के लिए आए। वो टाइम पे ये पुलिस वाले उस खलीमुद्दीन को अरेस्ट करने के लिए गए। वो टाइम पे उसका जो फैमिली मेम्बर्स ये लोग पुलिस वालों को अरेस्ट करने में ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो फिर वो लोग पुलिस स्टेशन को असिस्टेंस के लिए आसिफ नगर पुलिस स्टेशन को आए। फिर पुलिस वालों का मदद लेके वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद ये मालूम हुआ वो टाइम पे उन्होंने फ़ोन में घर में अंदर फ़ोन में बात करते हुए खिड़की से झुक के फ़ोन में बात करते हुए ठहरे, तो वो टाइम पे उसको हार्ट अटैक आके उससे गिर गया बोल के उसका बेटा कंप्लेंट दिए। उसके ऊपर अब केस रजिस्टर करके FIR करके इन्वेस्टिगेशन ये हार्ट अटैक जब भी आया सब मतलब कुछ वो लोगों का बोलना है। उसका से डर के या उन्होंने नीचे कूद गए? नहीं, वो जब का पुलिस वाले आने के बाद ये फिर पुलिस वाले पुलिस स्टेशन का आया, उसके बीच में हुआ। हो सकता पुलिस वालों ने आया बोल के डर के कुछ हार्ट अटैक आया शायद जी। तो अभी इसके ऊपर कुछ कंप्लेंट हुआ साहब? हाँ, वो उसका बेटे ऐसा हार्ट अटैक का आया, गिर गया बोल के कंप्लेंट दिए। उसके ऊपर केस रजिस्टर तो कर रहे हैं। क्या केस है साहब उसके ऊपर दुंडीगल पुलिस स्टेशन में? चीटिंग केस है बोल के आए वो लोग। और कुछ इससे पहले भी कुछ केसेस है साहब उसके? नहीं मालूम, वो सीसीएस में है बोल के बोल रहे हैं, लेकिन वो है ही नहीं, अपने को एग्जैक्टली नहीं मालूम। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन में एक शादीशुदा खातून सैयदा रुबीना हुसैन की खुदकशी के मामले की तहक़ीक़ात में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए मुतवफ़्फ़ी की वालिदा मेराज बेगम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की खुदकशी के लिए उसके 5 ससुराली रिश्तेदारों के नाम दर्ज करवाए थे, लेकिन पुलिस ने उनमें से किसी को भी हिरासत में नहीं लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस इस केस में सुस्त रवि से काम कर रही है। रुबीना के शौहर ने वकील के जरिए खुद को सुपुर्द कर दिया। मेराज बेगम ने उनके साथ इंसाफ करने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सज़ा देने का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिला। 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने सुसाइड करे। आपकी बहन का नाम क्या था? रुबीना, सैयदा रुबीना हुसैन। तो उनको अब तक मतलब उनकी जो ससुराल वाले हैं उसमें से तो उनके हस्बैंड आमिर आके ख़ुद सिलेंडर हुए वकील के थ्रू, मगर उनकी ननंदें, उनके सास ससुरे अब तक पकड़े नहीं गए।
और आप कितने जनों का नाम लिखाए थे? हम लोग 5 जनों का नाम लिखाए थे, उनके सास ससुरे, उनके मियाँ और उनकी दोनों ननंदे का। और जिसमें से सिर्फ उनके मियाँ आगे सिलेंडर हुए, मगर और सास ससुरे और दोनों ननंदों के ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उन लोग कहाँ फिर रहे हैं, किधर है, कोई एक्शन नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम लोग यहाँ कमिश्नर ऑफिस आए थे तो यहाँ से और आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे बोल के बोल रहे हैं। असद साहब से गुजारिश है, हम लोग वोट देते तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप इंसाफ भी दिलाइए। हमारी बहन मासूम थे, उनको इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ दिलाइए असद भाई। ये सुसाइड करने की वजह क्या थी? हरासमेंट, उनके हस्बैंड का सताना, पीना खाना, मारना, बच्चियाँ हो रही, लड़का नहीं हो रहा, लड़कियाँ हो रही। और 3rd प्रेगनेंसी उन्होंने किसी मुर्शद से मालूम करे 3rd भी लड़की है बोल के। वो मुर्शद का नाम एड्रेस नहीं, वो तो उनसे ही पूछना, उनके सास ससुरे ननंदों से और उनके मियाँ से ही पूछना कि वो कौन मुर्शद है। हमको तो उन्होंने यही बोले कि मुर्शद बोले बेटी है बोलकर। जीएसएमसी के काम ने अत्तापुर पिल्लर नंबर 123 के पास इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तमाम गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया। कई दुकानदारों ने अपने कारोबार को फुटपाथ तक तोसी दे दी थी। जीएसएमसी ने इस कार्रवाई के दौरान जेसीबी और बुलडोजरों का तक इस्तेमाल किया। बंदलागुड़े में अल्ट्राटेक ब्रांड की सीमेंट की डीलरशिप का क़याम अमल में आया। कंपनी के रीजनल मार्केटिंग मैनेजर बी प्रसाद और डीलर अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान ने अल्ट्राटेक सीमेंट के खुसूसी फीचर से वाकिफ करवाया। नमस्कार। अल्ट्राटेक यूटेक जो इनिशिएटिव है वो डिजिटल इनिशिएटिव है, अल्ट्राटेक ने लॉन्च किया हुआ। आप सबको मालूम है अल्ट्राटेक सुपर नंबर 1 ब्रांड है हैदराबाद में। और ये जो नया इनिशिएटिव डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया है उसके जरिए एक जो आम हमारा कस्टमर है उसको फाउंडेशन से लेके फिनिश कंस्ट्रक्शन तक पूरी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट सभी इसके माध्यम से मिलने वाला है। आप लोगों को मालूम है कि डिजिटल का पावर क्या होता है, वो जानकर कंपनी ने इसमें प्रवेश किया है। ये कंस्ट्रक्शन में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक कस्टमर के लिए बनाया हुआ है। कस्टमर यहाँ पे सभी सर्विसेज प्राप्त कर सकता है, प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकता है। अल्ट्राटेक के खुद के प्रोडक्ट्स बहुत है, आप जानते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट तो बनाता है, उसके अलावा बीपीडी के प्रोडक्ट्स है, आरएमसी प्रोडक्ट्स है, हमारे यूबीएस के माध्यम से देने वाले बहुत से प्रोडक्ट्स है जो भी अवेलेबल है। सो हमारा उद्देश्य ये है कि हम कस्टमर को एक टोटल एंड टू एंड बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। यही कंपनी का विजन है, दैट टू प्रोवाइड द कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन टू अ कस्टमर। सो उसी उद्देश्य से हमने ये यूटेक लॉन्च किया है और मुझे उम्मीद है कि हैदराबाद और के पूरे हमारे जो ग्राहक है उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस इससे मिलने वाला है। कई सुविधा है इसमें, एक VR एक्सपीरियंस करके भी एक सर्विसेज हम देने वाले हैं जिसके तहत वो कस्टमर अपना घर बनाने के पहले घर का अनुभव ले सकता है। एक वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से वो आप घर में कैसा दिखेगा ये सब देख सकता है। सो सभी चीज़ें टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। वाटर ट्रीटमेंट सर्विस हम दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एडवाइजरी सर्विस दे सकते हैं, जो भी हमारे सर्विसेज देते हैं वो देंगे। उसके अलावा 2D प्लान, 3D प्लान्स, ये भी सर्विसेज हम देंगे। फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस के बारे में भी हम उसको अवगत कराएंगे। सो ये जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड करने के बाद कस्टमर को घर बनने का जो टेंशन है वो पूरा भूल जाना चाहिए और ये सुविधा हमने उपलब्ध कर दी है इस ऐप के माध्यम से। तो मैं आप सब लोगों को निवेदन करूंगा, सभी लोग इसका डाउनलोड करें आपके सेल फ़ोन पे और ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाने का एक अनुभव प्राप्त करें। अल्ट्राटेक का उद्देश्य वही है कि जो आम घर बनाने वाला कस्टमर है उसको जो घर बनाने की तकलीफ़ होती है उसको पूरी तरह से दूर करें और ये डिजिटल के माध्यम से है और फिज़िकल भी हम उसको सहायता देंगे। कई चीज़ें साइट्स पे जाके देना है तो डिजिटल और फिजिकल ये दोनों का संयोग करके हम कस्टमर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और कस्टमर इज़ द फर्स्ट, ये उद्देश्य से हमने बनाया हुआ ये यूटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। थैंक यू वेरी मच। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से नुमाइश मैदान नामपल्ली में फेस्टिवल मेले के नाम से मलबूसात, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, ज्वेलरी और ब्यूटी हेल्थ केयर की स्टॉलें लगाई गई हैं। इस मेले में बुरखे और अबाया की एक दुकान INS ने बुरखों का फैशन भी मुनक़िद किया जिसमें ख़वातीन को मुख्तलिफ रंग बिरंगी और कीमती बुरखों में उन्हें रैंप पर चलाया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल कोविड-19 के चलते अदालत ने
सनती नुमाइश के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी थी। चुनाचे अब नुमाइश सोसाइटी ने कमोबेश इसी तर्ज की एक नुमाइश मेले के नाम पर शुरू की है, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। लखीमपुर खीरी वाक़े में हलाक होने वाले किसानों के लिए दुआया तकरीब अंतिम अरदास मुनक़िद हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से किसानों की बड़ी तादाद शरीक थी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी चरण सिंह के पोते राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी भी खुसूसी तौर पर शरीक रहे। वाज़ेह रहे कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा के फर्जंद आशीष मिश्रा ने पुरअमन एहतजाजी किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू मंगल को मुख्तसर दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। तरंगा बेगमपेट पर आला अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 14,313 नए केसेस सामने आने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 3,39,85,920 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 181 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मुल्क भर में कोविड-19 से 4,50,963 अफराद फौत हो चुके हैं। पीर के दिन जुमला 11,81,776 कोविड-19 टेस्ट किए गए। दूसरी तरफ बताया गया कि पूरे हिंदुस्तान में अब तक 95 करोड़ 79 लाख अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए जा चुके हैं।